Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Dr. Syeda Azra from Bahadur Zakriya University, Multan. And by we are getting towards new chapters. And today we have started part 2 from Richard T. Froyen. And in part 2, there are one, two, three, four, five chapters are included here, which will highlight the various topics and explain them by and by. And in part 2, we have chapter 3, 4, 5, 6, and 7. And these chapters have been written here. We don't have to waste time on explaining, but we should go ahead and move ahead just to chapter 3. The chapter 3, classical macroeconomics 1, and it will explain output and employment. It means we will discuss the macroeconomics 1, first part 1, in which we will discuss the output and employment under the school of economics, that is classical school of economics. The chapters in this part begin our analysis of macroeconomic models. We start with the classical model and then turn to the Keynesian model that developed as an attack on the classical system, the so-called Keynesian revolution. So this part we will discuss macroeconomics, and then we will turn to the macroeconomics under classical economists, and then we will turn to Keynesian's revolution. So just moving ahead, what is the starting point? The term macroeconomics originated in the 1930s. Macroeconomics that was fundamentally by systematic way got its origin in 1930s. 1930s is a very important decade because it met one of the most devastating uh, economic conditions that led towards the Great Depression, that is called 1930s Great Depression. The forces that determine income, employment, and prices, and had been receiving greater attention since the turn of the 20th century. 20th century के साथ ही जो income or employment and prices. As you know, in the first chapter, we discussed that there are certain macroeconomic variables like income, employment, prices, etc. in the closed economy. They will be discussed from time to time in this macroeconomics, and they have been receiving greater attention, ज़्यादा बेहतर attention मिलने लगी है since the turn of the 20th century. 20th century के आगाज में ही इन variables को बहुत importance मिलने लगी. 20th century. I'm talking about 20th century, in the start of the 20th century, after a long period in which microeconomics questions dominated the field of economics. इससे पहले जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बजाय माइक्रो की बजाय माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो इकोनॉमिक्स की फील्ड पर उनका गलबा था, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स से पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाती थी और उसी को ही वो इकोनॉमिक्स समझ रहे थे. तो अब जो 20th सेंचुरी के आगाज पे एज अ टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी, तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस जो कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है उनके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाने लगी. The World Depression that began in 1929, ये जो मैं 1930s का डिप्रेशन कह रही हूँ, ये वर्ल्ड डिप्रेशन भी कहलाता है और ये 1929 को इसका आगाज हुआ. Added urgency to the study of macroeconomic questions. कि वो एक
अर्जेंसी बल्कि इमरजेंसी के हालात पैदा हुए। जब हालात बहुत बिगड़ जाते हैं तो कोई चीज अर्जेंट जरूरत पड़ती है कि अर्जेंटली काम करना होता है। तो उस वक्त 1929 में जो डिप्रेशन स्टार्ट हुआ तो मैक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चंस जो हैं उनके ऊपर अर्जेंट तवज्जो की जरूरत पड़ी कि अब इसको फौरन ही इन क्वेश्चन को एड्रेस किया जाए। What are these questions? You know that in macroeconomics, what to produce, how to produce, for whom to produce, is the economy is developing? What is the pace of economic development? These are the questions that are put forward by every economy to solve these problems. The products of this research were theories of the business cycles. क्योंकि बिजनेस साइकिल क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन एक बिजनेस साइकिल से रिलेटेड था, इसलिए इसके बाद जो है वो बिजनेस साइकिल की थ्योरीज भी पेश हुई। एंड पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस फॉर स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब वो थ्योरीज भी आई और साथ साथ थ्योरीज वीजा वी पॉलिसीज भी स्टेबलाइजेशन की पॉलिसीज को भी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, क्योंकि स्टेबलाइजेशन की पॉलिसीज जो है वो उस वक्त की जरूरत थी। यानी हमने जो अर्जेंसी की जरूरत की बात की कि जब हालात 1929 में खराब होना शुरू हुए तो अर्जेंट हो गया कि आप जो है वो बिजनेस साइकिल थ्योरीज को जनरेट करें और साथ जो है वो ये जो इकोनॉमिस्ट हैं ये तो ये अपना काम करें और पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन यानी पॉलिसी इलाज। मैं आपको बता रही थी पहले भी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात हम करें, यहाँ पर आपको डिफरेंट जो इकोनॉमी के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेज हैं लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनकी बीमारियों के इलाज के लिए आपको पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस देने पड़ते थे। वन थ्योरी एंड सेट ऑफ पॉलिसी कंक्लूजन्स स्वेप्ट द फील्ड। एक ऐसी थ्योरी और ऐसा नतीजा भी आया that swept the field, that has ruled this field and became a new orthodoxy in macroeconomic thought। और orthodoxy की शायद मैंने पहले भी बात की है कि कुछ certain beliefs हैं, कुछ certain आपके principles हैं जिसको आप फोकस कर लेते हैं कि ये ऐसा ही होता है और ये एक रिवाज बन जाता है या एक ट्रेडिशन बन जाती है, उसको हम ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं, जो इतना सिस्टमैटिकल नॉलेज नहीं होता। तो न्यू ऑर्थोडॉक्सी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स थॉट में एक ऐसी सेट ऑफ पॉलिसी कंक्लूजन ने जो है वो न्यू ऑर्थोडॉक्सी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम पर जो है वो बहुत ज्यादा इसका शोहरत यानी इसका डंका बने। The book containing this theory was, अब देखना है कि वो ऑर्थोडॉक्सी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन थी, क्या थी। वो एक किताब थी, उस किताब के अंदर थ्योरी वाज द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। यानी इस एक किताब ने तहलका मचा दिया। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रोजगार, सूद और जर की थ्योरी के नाम से मशहूर है। और ये थ्योरी पेश किसने की, ये बुक पेश किसने की, बाय जॉन मेनर्ड कीन्स एंड द प्रोसेस ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक थिंकिंग। तो साथ ही इसकी किताब से एक प्रोसेस ऑफ चेंज आ गया, इकोनॉमिक थिंकिंग के अंदर एक इनकलाब आ गया दैट रिजल्टेड फ्रॉम दिस वर्क। जो कि इस काम के, इस थ्योरी के, इस इकोनॉमिक थॉट के नतीजे में एक इनकलाब बर्पा हो गया, हैज बीन कॉल्ड द केन्जियन रेवोल्यूशन। अब ये सवाल पैदा होता था कि क्या था इसको जो नाम दिया गया, जो कि ऑर्थोडॉक्सी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, जिसने तहलका मचा दिया था, जिसकी किताब ने एक शोहराफा किताब थी, जिसे हम जनरली जनरल थ्योरी के नाम से याद करते हैं। यानी आमतौर पे हम इसका पूरा नाम नहीं लेते, हम जनरल थ्योरी के नाम। और ये बुक जो है वो पब्लिश हुई थी 1936 के अंदर। और उसमें इस बुक ने एक रेवोल्यूशनाइज किया मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आइडियाज को, इतना इंट्रोड्यूस करवाया कि इसको हम केन्जियन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो पहले ये बात, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में ये पढ़ा, पहले उस पेज के ऊपर ये पढ़ा है कि हमने पहले क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लान करनी, फिर केन्जियन रेवोल्यूशन की बात करनी है। तो अब हमने ये पता चला कि 1930s
का डिप्रेशन जो कि 1929 में स्टार्ट हुआ था, उससे पहले जो है वो बाकायदा सिस्टमेटिक मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं थी। 1930 के डिप्रेशन के बाद जो है वो बाकायदा इकोनॉमिक्स का आगाज हुआ, और इस आगाज करने वाले कौन थे? ये केन्स था, प्रोफेसर जॉन मेनर्ड केन्स था, जिसे 1936 में किताब लिखी थी जिसे केन्सियन रेवोल्यूशन कहते हैं, या एक ऑर्थोडॉक्सी, न्यू ऑर्थोडॉक्सी के नाम से मशहूर है। ये ऑर्थोडॉक्सी न्यू इसलिए कहलाती है कि इससे पहले जो ऑर्थोडॉक्सी थी, जो दौर था, वो क्लासिकल्स का था। तो क्लासिकल्स के फेलियर, 1930s के डिप्रेशन में क्लासिकल्स का फेलियर हुआ, क्योंकि जो चीजें उन्होंने बयान की थी उसके बिल्कुल बरअक्स हालात बिजनेस साइकिल के ऐसे हुए कि फिर वो फेल हो गया। उस थ्योरी के बाद, उनकी थ्योरीज के बाद जो थॉट दी है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो जॉन मेडर केन्स ने दिए हैं। तो मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का बानी प्रोफेसर केन्स को ही कहते हैं। So we are talking about Keynes' idea, and from the revolution as well as the evolution of these ideas in the post-Keynesian period are central to our analysis. कि हमारा जो analysis का center है, जो तवज्जो का मरकज है, ना सिर्फ Keynesian revolution बल्कि as well as the evolution of these ideas in the post-Keynesian period, कि Keynes के गुजरने के बाद, केन्स के बाद, केन्स के अपने पीरियड के बाद, पोस्ट केन्स के अपने पीरियड के बाद भी जो आइडियाज एवोल्यूशन हुई, जिनका इर्तकाई सफर जारी रहा बेस्ड ऑन केन्स आइडियाज, वो सारी चीजें हमारे जो है वो डिस्कशन का हिस्सा होंगी। A prerequisite for this analysis is knowledge of classical system that Keynes attacked. अब हमने इतनी बड़ी बात की है कि केन्सियन रेवोल्यूशन है। अब केन्सियन रेवोल्यूशन तो आपको बात ये समझ आ गई होगी कि इसने किताब लिख दी और तहलका मचा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो उसकी प्री रिक्विजिट क्या है। उससे पहले मैंने वैसे आपको ये डिस्कस कर दिया है कि क्लासिकल्स का फेलियर था। You can say the sunset of the classicals or the sunrise of Keynes. So इसकी प्री रिक्विजिट ये है कि हमारे पास नॉलेज तो होना चाहिए कि क्लासिकल आखिर सिस्टम क्या था जो फेल हो गया, उसके क्या कॉन्टेंट इंटेंट्स थे, क्या कॉन्टेंट्स थे। तो हमें पता होना चाहिए कि क्लासिकल्स अगर फेल हुआ और केन्स जो है वो कामयाब हुआ, तो क्लासिकल्स की कौन से लूप होल्स थे जिनकी वजह से क्लासिकल्स फेल हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑल्सो प्लेज अ पॉजिटिव रोल इन द लेटर डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। के क्लासिकल का इल्म हासिल होना इसलिए भी जरूरी है कि ये हमें लेटर जो हमने डेवलपमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स की करनी है, उसने उसके समझने में भी हमारा बड़ा ये अहम पार्ट प्ले करेगा। तो किसी भी सब्जेक्ट को समझना हो तो सबसे पहले हम उसका क्लासिकल पीरियड समझते हैं। वो के अब वो डिफरेंट थ्योरीज आ चुकी हैं, लेकिन क्लासिकल्स की बेसिस से ही आपको पता चलता है कि इकोनॉमिक्स का अपना एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ और किस किस दौर के अंदर कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट अमर्ज हुए। Although many early Keynesian writers viewed the classical theory as ready for the scrap heap of outmoded ideas. अब वो कहते हैं क्लासिकल अर्ली केंसियंस जो राइटर्स थे, उन्होंने क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट पर मबनी जो थ्योरीज थी, उन्होंने कहा कि ये तो एक रेडी फॉर स्क्रैप हीप ऑफ आउटमोडेड आइडियाज, कि अगर आपकी आउटडेटेड आइडियाज हैं, पुराने मतरूक किस्म के आइडिया हैं, वो उसका एक समझ लें कि रबिश, एक हीप है, एक ढेर है, एक मजमुआ है, यानी फरसूदा ख्यालात का मजमुआ है। अब उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ओवर रिएक्शन सबसाइडेड विद टाइम। वो के जो ही केन्स के आइडियाज आए, केन्सियंस आए, तो रिएक्शन बड़ा सख्त था, लेकिन वक्त के साथ साथ ओवर रिएक्शन जो है वो सबसाइडेड हो गया, यानी कि स्लो डाउन हो गया। और ओवर रिएक्शन वो स्लो डाउन, यानी उसमें कमी आ गई उसकी हीट में। एंड मॉडर्न केन्सियंस इकोनॉमिक मॉडर्न जो केन्सियंस इकोनॉमिक्स है contains many ideas
that originated with the classical economists. क्योंकि अब जो मॉडर्न केन्जियन इकोनॉमिक्स है उनके बहुत से आइडिया है, उनका ओरिजिन हमें क्लासिकल से ही मिलता है. सो क्लासिकल्स ने किसी भी नजरिए को अगर समझना तो उसकी इब्तदा जो है वो क्लासिकल्स ने की है. इसलिए अगर कोई नई थ्योरीज भी आई तो आपकी उसका ओरिजिन हमें कहीं ना कहीं क्लासिकल्स के अंदर से मिलता है. अगर उनकी फॉल्ट भी है तो ओरिजिन तो वही बनता है ना, वो फॉल्ट ही ओरिजिन बन जाता है. The classical model also provides a starting point for challenges. क्लासिकल का एक फायदा ये होगा मॉडल्स का कि starting point for challenges that have been mounted against the Keynesian theory by monetarists. क्लासिकल मॉडल जो है वो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है उन चैलेंजेस के बारे में that have been mounted, जो चैलेंजेस जो है वो केन्जियंस थ्योरी को सामना करना पड़ा केन्जियंस थ्योरी के बाय मॉनेटरिस्ट. मॉनेटरिस्ट जो है वो केन्जियंस के साथ साथ चलते हैं. इनका टाइम पीरियड एक दूसरे के ऊपर अटैकिंग टाइम पीरियड, यानी कि तुर्की बुतर्की जो है इधर से क्लासिकल्स इधर से केन्जियंस अपनी थ्योरी दे, इधर से मॉनेटरिस्ट दे रहे हैं और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी दे रहे हैं. तो अब जब क्लासिकल्स को केन्जियंस ने अपनी तनकीद का निशाना बनाया तो केन्जियंस भी तनकीद के बगैर ना रह सके, क्योंकि केन्जियंस वर क्रिटिसाइज्ड बाय मॉनेटरिस्ट एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. क्लासिकल्स तो वो जो प्रिमिटिव टाइम था उनका उसमें थे, और उन्हीं क्लासिकल्स ने जब नई थ्योरीज या कुछ क्लासिकल में ऐड किया तो उसे हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं. एंड रियल बिजनेस साइकिल थ्योरिस्ट ने भी इसको क्रिटिसाइज. सो केन्स वाज नॉट डिवॉइड ऑफ एनी क्रिटिसिज्म. Keynes has to Keynes and Keynesian's theories had to be criticized by monetarists, classical economists, and real business cycle theorists. So we can say that जो आपकी फिजिकल साइंस है उसकी तो बात हो रहा है, लेकिन जो आपकी सोशल साइंस है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक थ्योरी आती है और वो कुछ अर्सा तक ठीक अपना असर दिखाती है और पॉपुलराइज भी होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ज्योग्राफिक सिचुएशन चेंज होती है किसी कंट्री की, किसी खित्ते की, किसी इलाके की, तो वैसे वैसे वो जो है थ्योरीज का अपने जो है वो अपनी ही थ्योरी वो खुद नेगेट कर देती है अपने आप को हालात के रहमो करम की वजह से. तो जैसे हालात होते हैं वैसे थ्योरी बन जाती है. केन्स यूज द टर्म क्लासिकल. अब सबसे पहले ये बात है केन्स ने ही क्लासिकल की टर्मिनोलॉजी यूज की टू रेफर टू वर्चुअली. क्लासिकल्स को अगर कहें तो क्या होता है वर्चुअली ऑल इकोनॉमिस्ट who had written on macroeconomic questions before 1936. तो क्योंकि केन्स ने किताब 1936 में लिखी थी, केन्स के आइडियाज उभर कर 1936 में सामने आए. जो जनरल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट है, इनकम एंड मनी है, तो ये इंटरेस्ट एंड मनी है, वो 1936 में किताब उसने केन्स ने कहा कि 1936 से पहले जो भी इकोनॉमिस्ट लिख रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में वो क्लासिकल्स कहलाते हैं. सो क्लासिकल एरा एंड्स बिफोर 1936. More conventional terminology distinguishes between two periods in the development of economic theory before 1930. More conventional terminology जो है वो बहुत ज़्यादा जो एक रवायती terminology जो कि distinguish करती है, जो कि फ़र्क कायम करती है, जो वाज़े ख़त इम्तियाज़ कहती है between two periods, यानी कौन सा period? Classicals and Keynes period in the development of economic theory before 1930. तो 1930 से पहले जो है वो जो चीज डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन द टू पीरियड्स वो 1930 जो है वो उससे पहले बल्कि 36 की बजाय भी कन्वेंशनली स्पीकिंग 1930 के डिप्रेशन से पहले जो इकोनॉमिस्ट काम कर रहे थे वो क्लासिकल्स कहलाते हैं. The first term classical is the period dominated by the work of Adam Smith. सबसे पहले जो डोमिनेंट सबसे गालिब रहा मैक्रो इकोनॉमिक्स को यानी क्लासिकल को
بیان کرتے ہی جو دماغ میں سب سے پہلے اکانومسٹ آتا ہے وہ ہے ایڈم اسمتھ. ایڈم اسمتھ نے ویلتھ آف نیشنز کے نام سے کتاب لکھی اور یہ کتاب 1776 میں لکھی تھی. یہ وہی سال تھا جب امریکہ آزاد ہوا تھا. تو ایڈم اسمتھ کے نظریات 1776 میں اس نے اپنی کتاب میں قلم بند کر دیے تھے. یہ کلاسیکلز کا بابا بھی کہلاتا ہے, دا فادر آف کلاسیکل اسکول آف تھاٹ. ڈیوڈ ریکارڈو پرنسپلز آف پولیٹیکل اکانومی کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی. یہ 1817 میں یہ فرسٹ ایڈیشن تھا ان کا. ریکارڈو کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کلاسیکلز میں لائے کرتا ہے اسکول آف تھاٹ میں. جان اسٹوارٹ مل جو ہے پرنسپلز آف پولیٹیکل اکانومی, اس نے بھی یہی نام سے کتاب لکھی ہے اور فرسٹ ایڈیشن اس کا 1848 میں, 1817 میں ریکارڈو کی بک اور 1848 میں جان اسٹوارٹ مل نے کتاب لکھی تھی. اور ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ سارے 1930 سے پہلے ہی آ رہے ہیں نا, 1776 1817 1848 یہ سارے 1930 سے پہلے لکھ رہے ہیں. دا سیکنڈ ٹرم دا نیو کلاسیکل پیریڈ. اب ایک اور کلاسیکل کے ساتھ نیو نہیں ہے بلکہ نیو کلاسیکل پیریڈ ہے. had as its most prominent English representative. اگلا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ نیو کلاسیکل کہلاتا ہے اور اس کا جو نیو کلاسیکل کا جو بانی ہے وہ الفرڈ مارشل کے نام سے ہے. اور مارشل نے جو ہے وہ ویلفیئر اکنامکس کے نام سے زیادہ کام کیا ہے اور اس کی بک کا نام تھا پرنسپلز آف اکنامکس, ناٹ پولیٹیکل اکنامکس اکانومی, رادر پرنسپلز آف اکنامکس. 8th ایڈیشن اس کا ہے, 1920 میں آیا تھا. اور اے سی پیگو دا تھیوری آف ان امپلائمنٹ اس نے 1933 میں لکھی ہے, لیکن آئیڈیاز اس کے 1930 سے پہلے آئے. So these two are the two very important school of thought. One is the classical, Adam Smith, Ricardo, John Stuart Mill. The second is the neoclassical, that is named after, the prominent scholars are Alfred Marshall, ACP. Keynes believed that macroeconomic theory of the two period was homogeneous. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوموجینس جو ہے وہ دونوں کا, ان کو ہم خط امتیاز نہیں کھینچنا چاہیے بلکہ enough to be dealt with the with as a whole. اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دونوں ٹائم پیریڈ جو کلاسیکلز اور نیو کلاسیکلز اور نیو کلاسیکلز ہیں, یہ دونوں پیریڈ میں جو تھیوری ہے ایک طرح کا ہی ان کا کام ہے. یعنی یہ دونوں سمجھ لیں کہ اسی لیے بعض لوگ کلاسیکلز اور نیو کلاسیکل کہہ دیتے ہیں, نیو کلاسک ہے نیو, اور بعض اسی دونوں کو جو ہے وہ ملا کر کلاسیکلز کا نام ہی دیتے ہیں. سو ہم ان کو ہم اتنا لیبل نہیں لگا سکتے. ٹیپیکل کہہ سکتے ہیں آپ, یعنی کہ ہر بندے نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بیان کیا ہے. تو اگر آپ ان کو بھی کلاسیکل کے کھاتے میں ڈال دیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. پھر آگے جی, because we are talking about the starting point and we are talking about the classical, to classical economists, equilibrium level of output at any point, at any time was a point of full employment. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسیکل کے نظریات کیا ہیں. کلاسیکل یہ کہتے ہیں اکانومسٹ کہ آپ کی, جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ آؤٹ پٹ, امپلائمنٹ اور پرائسز کے اوپر زیادہ توجہ دی جانے لگی تھی 20th سینچری میں, 21st سینچری 20th سینچری میں. تو اب جو the equilibrium level of output at any time was a point of full employment. اسے کہا کہ جب کسی بھی آؤٹ پٹ کا ہم equilibrium level دیکھنا چاہتے ہیں تو ایکچولی وہ فل امپلائمنٹ کے لیول پر ہوگی. یعنی اکانومی اگر توازن ہوگا اکانومی میں تو وہاں اس ملک میں فل امپلائمنٹ ہوگی, یعنی پورے سارے لوگ امپلائڈ ہوں گے. تو ویئر اب اس نے جو فل امپلائمنٹ کو ایکسپلین کیا ہے کہ فل امپلائمنٹ ایکویلیبرم کہاں ہوگا, فل امپلائمنٹ پہ ہوگا. اور ویئر فل امپلائمنٹ کہاں ہوگی, ویئر ایکچوئل آؤٹ پٹ ایکول ٹو پوٹینشیل آؤٹ پٹ. ہم نے پیچھے چیپٹر میں یہ سے ڈسکس کیا تھا کہ ایکچوئل آؤٹ پٹ وہ ہے جو اکانومی میں پروڈیوس ہوتی ہے ٹینجیبلی. پوٹینشیل آؤٹ پٹ ہے وہ ہے جو آپ اپنے ریسورسز کو میکسیمم یوٹیلائز کرتے ہوئے جتنا آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں, آپ کی کیپیسٹی ہے, اسے ہم پوٹینشیل آؤٹ. وہ کہتا ہے کہ
वो जो आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लेते हैं ना, उस पर आपकी एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट बराबर होंगे, यानी आप जितना कमास पैदा कर सकते थे आउटपुट को, आपने उतना ही एक्चुअली भी प्रोड्यूस किया, तो इकोनॉमी जाहिर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, फुल एम्प्लॉयमेंट इन ऑल मार्केट्स भी जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आपकी आपकी कमोडिटी मार्केट में भी फुल एम्प्लॉयमेंट है, आपकी लेबर मार्केट में भी फुल एम्प्लॉयमेंट है, कैपिटल मार्केट में भी फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन फुली एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, आपके कोई भी रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड है। सो इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट वहां होगा जब एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट के बराबर होगी। ये किसने कहा था? क्लासिकल। Equilibrium for a variable refers to a state in which all the forces acting on that variables are in balance. Equilibrium की जो definition करता है कि equilibrium condition का मतलब है एक ऐसी कैफियत, एक ऐसी स्टेट जिसमें ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट वेरिएबल, वो तमाम कुव्वतें जो उस वेरिएबल को अफेक्ट कर रही हैं, वो तमाम कुव्वतें जो किसी वेरिएबल को यानी आउटपुट को अफेक्ट कर रही हैं, वो बजाते खुद भी बैलेंस में हो, यानी उनका अपना भी बैलेंस हो। ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ आप एक ही वेरिएबल हो, बल्कि उस पर अफेक्ट करने वाले उसके डिटर्मिनेंट्स भी बैलेंस हो, एंड consequently there is no tendency for the variable to move from that point. अब इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशन है किसी के वेरिएबल जो है उसके अंदर टेंडेंसी ना हो कि वो उस पॉइंट से खिसक सके, यानी दाएं या बाएं ना जा सके। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेबल पोजीशन, कि वो उसके ऊपर आपकी टेंडेंसी ना हो कि आप दाएं और बाएं कर सकें, यानी आपकी एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट के बराबर है, तो फिर आप दाएं बाएं वो भी नहीं कर सके। सो इट वाज एन important tenet of classical economists that only full employment points would be positions of even short run. तो उन्होंने कहा है कि इट वाज एन इम्पोर्टेंट टेनेंट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की सबसे बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट जो एक टेनेंट है, एक एक जो उसका सतून है, दैट ओनली फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट्स वुड बी पोजीशंस ऑफ इवन शॉर्ट। फुल एम्प्लॉयमेंट आपकी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। सो हम ये कहते हैं कि full employment is one of the most important feature of classical school of thought, and full employment, where there's full employment, there's a equilibrium level of output, actual output potential is equal to potential output, and equilibrium is a situation where there is no tendency for the variable to move from that point. So this is called the full employment. So उनका मतलब ये है कि किसी भी इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है। हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे रह सकती है, ये तो अब आप लोग भी इसको बेहतर सोच सकते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया क्योंकि वो एक टाइम ऐसा था जिसमें पॉपुलेशन कम थी, जिसमें मसाइल कम थे, जिसमें टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी, तो वक्त बड़ी स्लो गुजर रहा था, जो आप सोचते थे वही होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ने आपके तमाम जो नज़रियात हैं वो चेंज कर दिए, और तमाम अंदाजे आपके जो है वो गलत साबित होना शुरू। Absent full employment, classical economists assumed that forces not in balance were acting to bring output to the full employment level. कि अगर full employment नहीं भी हो, तो classical assume that forces not in balance, जो balance में forces नहीं होंगी, were acting to bring output to the full employment, कि आखिर में हालात खुद ब खुद ऐसे पैदा हो जाएंगे कि वो full employment की तरफ चले जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता ना कि सारे हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन अगर वो कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक आपका टारगेट है, अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे हैं, ये क्योंकि एक वेरिएबल चेंज होता है तो उस वक्त एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा डिसलेवल होगा ना, तो आपका एक एम्प्लॉयमेंट भी चेंज होगी, दूसरे में, तीसरे में, तो अल्टीमेटली आप जो फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन कर लेंगे, एंड along with the associated level of other important aggregates,
जब आपकी आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट में होगी तो इक्विलिब्रियम में होगी, तो अदर एग्रीगेट्स भी फुल एम्प्लॉयमेंट में होंगे, जिनमें कि कोई चेंज आने से आउटपुट दोबारा बैलेंस हो जाएगी। सच एज वो कौन से वेरिएबल हैं जो आउटपुट को भी अफेक्ट करते हैं? एम्प्लॉयमेंट है, प्राइसेस हैं, वेजेस हैं, एंड इंटरेस्ट रेट। सो अदर एग्रीगेट्स जो है वो इससे जो एसोसिएटेड है आउटपुट से, अगर इनमें कोई चेंजेस आ भी जाए तो अल्टीमेटली आपकी जो आउटपुट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हासिल कर लेगी। यानी उनके नजदीक ये है कि आखिरकार इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर जाएगी। सो अगर मैं इसका लमसम देखूं तो एक बड़ा हाईलाइटेड किस्म का मैं एक जो है वो कैप्शन लगा दूं कि सबसे बड़ी जो उनकी टेनेट था, क्लासिकल का जो कैरेक्टरिस्टिक थी, जो उनका फीचर था, वो ये था, वो कहते थे कि जो मर्जी कर ले, इकोनॉमी के अंदर हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। अगर डिस लेवल थोड़ी देर के लिए होगा तो शॉर्ट पीरियड में तो डिस इक्विलिब्रियम हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग पीरियड में इक्विलिब्रियम नहीं होता। So we are talking about the classical revolution. अब ये classical economist emerged as a revolution against a body of economic doctrine. सवाल ये पैदा होता है, हमने कहा ये हमने केन्जियंस पढ़ना है, लेकिन केन्जियंस पढ़ने से पहले क्लासिकल्स की हमारे पास नॉलेज होना चाहिए. But remember that was there any era in which there were some other school of thought or other ideas were working on economics before classicals? क्वेश्चन ये मैं कहती हूँ, क्लासिकल से पहले भी क्या कोई ऐसा आइडियाज थे इकोनॉमिक्स के बारे में? तो आंसर इज यस. अब जो क्लासिकल से पहले जो था, जो कि कुछ आइडियाज प्रिवेल थे इकोनॉमी में, वो था मर्केंटलिज्म. पता चला कि क्लासिकल से पहले कुछ इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक आइडियाज के ऊपर कुछ लोग काम कर रहे थे, उन्हें हम मर्केंटलिस्ट कहते हैं, और उनका स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मर्केंटलिज्म कहलाता है. क्लासिकल इकोनॉमिक्स emerged as a revolution against the body of economic doctrines. के इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन्स मीन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के एक बॉडी, मतलब एक ऐसा यानी कि स्कूल ऑफ थॉट था, एक जो इकोनॉमिक नजरियात पे काम कर रहा था. और क्लासिकल भी एक रेवोल्यूशन के तौर पर उभरा था जब मर्केंटलिज्म फेल हो गए थे. सो नोन एज मर्केंटलिज्म, ये मैंने बता दिया. तो क्लासिकल्स भी जो है वो मर्ज हुए हैं एज अ डेथ ऑफ अ स्कूल ऑफ थॉट दैट इज कॉल्ड मर्केंटलिज्म. सो वी कैन से दैट केन्स का रेवोल्यूशन आया, उससे पहले क्लासिकल्स का रेवोल्यूशन आया. क्लासिकल्स का रेवोल्यूशन किसके अगेंस्ट आया? मर्केंटलिज्म के खिलाफ आया. मर्केंटलिस्ट क्या कहते थे? मर्केंटलिस्ट थॉट was associated with the rise of nation state in Europe during the 16th and 17th century. Mercantilist thought क्या थी? Was associated with the rise of nation state in Europe. यानी ये एक नजरिया था कि नेशन स्टेट इन यूरोप, यानी कौमी जो है रियासत यूरोप में थी, उसके उससे मतलब है, यानी यूरोप के अंदर एक रियासत कौमी रियासत के तौर पर उभरा था, यानी कौमियत प्रस्ती की तरफ जा रहा था. ड्यूरिंग द कब था ये? 16वीं और 17वीं सेंचुरी के दौरान मर्केंटलिस्ट जो है वो एसोसिएटेड थी यूरोप के अंदर नेशन स्टेट, यानी कौमी जो है वो आपकी रियासत के नाम पर उभरी थी. अब देखिए, कौमी रियासत का मतलब ये है कि आप अपने कौम को ही ख्याल में रखें, किसी और को नहीं रखें. टू टेनर्स ऑफ मर्केंटलिज्म. अब वो करते क्या थे, उनके क्या असूल थे, क्या फीचर्स थे? तो जिसकी बिना पर हम उन्हें नेशन स्टेट इन यूरोप के नाम पे 16वीं और 17वीं सदी में कहते हैं. उनके जो फीचर्स थे वो क्या कहते थे? नंबर 1, उनका बिलीफ था बुलियनिज्म. बुलियनिज्म क्या होता है? बुल से है ना, बुल को पावर समझा जाता है. तो बुलियनिज्म का मतलब है कि पावर आप जो है वो गैदर कर रहे हैं, यानी व्हेन यू आर गैदरिंग अ पावर, विच सॉर्ट ऑफ पावर? द पावर ऑफ वेल्थ. सो क्या करते थे? आई बिलीव दैट द वेल्थ एंड पावर ऑफ नेशन, दो वर्ड्स हैं, कि एक कौम की जो दौलत है और उसकी कुवत है,
किसी कौम की दौलत और उसकी कुव्वत व डिटरमिन, यानी एक मुल्क कितना वेल्थी है और कितना वो पावरफुल है, व डिटरमिन बाय इट्स स्टॉक ऑफ प्रेशियस मेटल। वो इसको किस चीज से डिटरमिन होती थी, ताकत और उसकी वेल्थ, कि उसके पास स्टॉक ऑफ प्रेशियस वेल्थ, उसके पास कीमती धातुओं का कितना बड़ा स्टॉक है। अगर किसी कंट्री के पास, नेशन स्टेट इन यूरोप में, अगर किसी मुल्क के पास सोने और चांदी के लायक सिक्के बहुत बड़े बड़े ढेर थे, तो वो उसको उतना ही ताकतवर समझा जाता था और उतना ही दौलतमंद समझा जाता था। ज़ाहिर है, आज भी देखें जो भी कंट्री इकोनॉमिक पावर में है, वही जो है वो पॉलिटिकल और आर्मी के सेंस में पावर में है। सो हम ये कह सकते हैं कि दौलत ही, मनी मेक्स समीर गो। तो आपके पास दौलत है तो आप जो है वो आप पावरफुल भी होंगे। The belief in the need for state action to direct the development of capitalist system. The belief in the need of state action, ये ऐसा बिलीफ था जिसमें स्टेट के एक्शन की जरूरत थी टू डायरेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। सो ये कैपिटलिज्म की जो डेवलपमेंट है उसका समझ लें कि उसकी तरफ जा रहा था, यानी कैपिटलिज्म डेवलप हो रहा था थ्रू द मर्केंटलिस्ट। So, adherence to Bullianism led countries to attempt. अब बुलियनिज्म के साथ adherence का मतलब यह है कि अगर आपने बुलियनिज्म को अपना लिया, adhere कर लिया है, तो इसने क्या किया, लेट द कंट्रीज को इसने गाइड किया टू अटेम्प्ट टू सिक्योर एन एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इम्पोर्ट्स। अब जब दौलत इकट्ठी करनी है तो कैसे इकट्ठी करनी है, तो लोगों को लगा दिया कि वो अटेम्प्ट करें टू सिक्योर एन एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट, कि वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा दें ओवर इम्पोर्ट्स, और इम्पोर्ट्स को कम करें, यानी योर एक्सपोर्ट शुड बी ग्रेटर देन योर इम्पोर्ट्स। जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू आपके पास ज्यादा इकट्ठा होगा, और इंपोर्ट कम करेंगे तो आपको पेमेंट कम करनी पड़ेगी। तो दोनों का डिफरेंस जो नेट एक्सपोर्ट्स कहलाता है, आपने पढ़ा था एक्स एक्स माइनस एम पढ़ा था। तो आप जब आपके पास एक्सपोर्ट होंगी ज्यादा, तो वो जो बाहर वाले लोग हैं, कंट्रीज वाले, वो आपकी चीजें खरीद कर आपको सोने और चांदी के सिक्के, फर्ज करें वो देते हैं, गोल्ड के सिक्के या सोने चांदी के सिक्के देते हैं, तो आपके बुलियनिज्म में इजाफा होगा। तो वो यही कहते हैं ना कि आपके पास कितना स्टॉक ऑफ प्रेशियस मेटल है, तो प्रेशियस मेटल के स्टॉक में ही इजाफा करना है आपने। तो फिर आप एक्सपोर्ट को बढ़ाकर आप रेवेन्यू कमाएं और इम्पोर्ट्स कम करें, ताकि आपका जो सोने और चांदी के सिक्के वो बाहर कम जाए और आपके मुल्क में ज्यादा आए, तो रादर आपके स्टॉक में से कमी वाक़या ना हो, इजाफा हो जाए। सो ये तरीका था कि आप अपनी ट्रेड, हर कंट्री कोशिश करता था कि वो एक्सपोर्ट ज्यादा करे और इंपोर्ट कम करे। मेथड यूज्ड टू सिक्योर दिस फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूडेड, अब वो क्या था कि अब इसको किस तरीके से आप अपने एक्सपोर्ट को ज्यादा कर सकते थे और इंपोर्ट को कम कर सकते थे। तो उसके लिए क्या मेथडोलॉजी इस्तेमाल किया, आगे जो एरो है हम देखते हैं। एक्सपोर्ट सब्सिडीज, क्या किया कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्टर, उनको सब्सिडीज दें। सब्सिडीज का मतलब ये है कि आप उनको जो है वो आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी उनको आप गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज देकर, एक्सपोर्ट सब्सिडी देकर, यानी एक्सपोर्ट सस्ती करके, सब्सिडी का मतलब एक्सपोर्ट को सस्ती सस्ती करके आप बेचेंगे। जब आप एक्सपोर्ट सस्ती करके बेचेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, और एक्सपोर्टेबल जो गुड्स हैं वो सस्ती बने, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगी, आपकी बाहर के मुल्कों में कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। जब कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी तो आपकी चीज़ें जो है वो ज़्यादा फरोख्त होंगी, जब फरोख्त होंगी तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा। और आप क्या करें, ऐसे एक्सपोर्ट सब्सिडीज देकर एक्सपोर्ट बढ़ा दें, और इम्पोर्ट ड्यूटीज जो है ना, इम्पोर्ट के ऊपर आप ड्यूटी लगा दें, टैक्स लगा दें, कि जो भी इम्पोर्ट करे उसको उसके ऊपर इतना हैवी टैक्स लगा दें कि लोग कहें कि ये तो कीमत बहुत बढ़ गई है, तो लोग उस पर, इस तरह ये आप इंपोर्ट को डिस्करेज करने का तरीका ये है कि उस पर टैक्स लगा दें। मसलन हम कहते हैं कि एक गाड़ी है, उस 1 करोड़ की गाड़ी है, अगर आप कहेंगे इसके ऊपर 100% आपने इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी है, तो गाड़ी आपके मुल्क में 1 करोड़ की बजाय 2 करोड़ की मिलेगी। तो फिर आप प्रेफर करेंगे कि आप अपनी होम मेड जो है कार्स खरीदें एज कम्पेयर टू आप
जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटीज देने की। एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज, और ये था कि एक्सपोर्ट को सब्सिडीज दी उन्होंने, इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी लगा दी, एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज बनाई, कॉलोनीज की डेवलपमेंट की, यानी कॉलोनीज बना दी टू प्रोवाइड एक्सपोर्ट मार्केट, ताकि वो एक्सपोर्ट की मार्केट भी प्रोवाइड कर सकें। तो कॉलोनीज में टू प्रोवाइड, यानी एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज टू प्रोवाइड एक्सपोर्ट मार्केट, यानी अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है तो कहाँ करनी है, उसके लिए डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज बनाई, यानी कॉलोनीज बना दी ताकि उन कॉलोनीज में आप अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकें। स्टेट एक्शन वाज बिलीव्ड टू बी नेसेसरी, लेकिन स्टेट का एक तो ये कि बुलियनिज्म है, बुलियनिज्म कैसे आता है, आप एक्सपोर्ट को बढ़ा दें, इंपोर्ट को कम कर दें, तो ये कैसे किया जा सकता है, एक्सपोर्ट सब्सिडी देकर, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाकर, और कॉलोनीज को डेवलप करके वहां पर तक एक्सपोर्टेबल गुड्स जो है वो बेच सकें। और इस तरह फिर अगला है, स्टेट एक्शन वाज बिलीव्ड टू बी नेसेसरी टू कॉज द डेवलपिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम, के स्टेट एक्शन बहुत जरूरी था कि टू कॉज द डेवलपिंग कैपिटलिस्टिक सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक रियासत का किरदार बहुत ज्यादा था, टू फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ताकि स्टेट की जो है वो इंटरेस्ट को मजीद बढ़ाया जा सके। फॉरेन ट्रेड वाज केयरफुली रेगुलेटेड, अब जो फॉरेन ट्रेड थी उन्हें बड़ी एहतियात के साथ रेगुलेट किया जाता था, यानी बाकायदगी से पैदा किया, एंड द एक्सपोर्ट ऑफ बुलियन वाज प्रोहिबिटेड। और आप आपके जो एक्सपोर्ट ऑफ बुलियन थी, यानी कि आप जो आपके जो सोने चांदी के सिक्के थे वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, वो प्रोहिबिटेड। उसका उसका जो है प्रोहिबिट किया, उसको आपने जो है वो क्या किया था, मना किया था कि आपने बुलियन बाहर नहीं भेजे, टू सर्व द एंड्स ऑफ बुलियनिज्म, कि बुलियनिज्म के मकासद को पाने के लिए आपने बैन लगा दिया था कि आपने अपने मुल्क का जो स्टॉक ऑफ प्रेशियस मेटल है उससे आप बाहर नहीं भेज सकते। और ये फॉरेन ट्रेड वाज केयरफुली रेगुलेटेड, उसको बड़ा अच्छा रेगुलेट किया गया था, ताकि कोई बंदा जो है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको फॉलो करने के लिए आपको बहुत केयरफुली रेगुलेट करना पड़ता है। अदरवाइज तो लूप होल्स होते हैं, फिर वो लोग जो है वो किसी न किसी तरीके से पैसा बाहर भेज सकते हैं। तो गवर्नमेंट की जो केयरफुल रेगुलेशन से उसकी वजह से इट वाज प्रोहिबिटेड टू एक्सपोर्ट द बुलियन आउटसाइड द कंट्री, और इस तरीके से वो अपने मकासद हासिल करते थे। The use of state action was also advocated on a broader front, कि हुकूमत का रोल जो है वो ब्रॉडर जो है वो ज्यादा था, वसी था, डेवलप होम इंडस्ट्री। गवर्नमेंट का ये एक्शन इसलिए भी जरूरी था, इतनी पाबंदियां लगाने का, कि वो मुल्क की अपनी इंडस्ट्री, होम इंडस्ट्री, अपनी अंदरूनी जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट कर सके। क्योंकि अगर फर्ज करें, अगर आप कारें बना रहे हैं और कारें आप बाहर से ले लेंगे, तो आपकी जो अपनी इंडस्ट्री है कारें बनाने वाली, वो फेल हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए आप एक मकसद ये भी था कि आप जो है वो इम्पोर्ट ना, टू reduce consumption of imported goods। मुल्क की इंडस्ट्री को इसलिए बनाना जरूरी था कि आप इंपोर्टेड गुड्स की जो कंजम्पशन है वो उसे कम कर दें, एंड टू डेवलप बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अपने ह्यूमन और अपने ही कुदरती ज़राए को जो है वो डेवलप करें, बेहतर बनाएं, ताकि मुल्क के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस हो सकें। आप इंपोर्टेड चीज़ें जो है उनकी कंजम्पशन को रोक दें, और आप अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ें खर्च करें। ये भी मकसद था गवर्नमेंट की केयरफुल जो है वो रेगुलेशन का। तो पता चला कि क्लासिकल से पहले जो स्कूल ऑफ थॉट था, दैट वाज मर्केंटलिज्म। एंड मर्केंटलिज्म का जो फीचर था, टेनट था, वो बुलियनिज्म था। एंड बुलियनिज्म could be enhanced, or stock of precious metal could be enhanced only by exporting more and importing less. And in order to protect the
bullions of the economy. The method that were used were export subsidies, import duties, and development of colonies. And the state action was very important, and state was very much interesting. And by that time, capitalism was promoting and was being promoted, and the foreign trade was carefully regulated so that there should be prohibition of sending the bullion out of the country. And there was another reason why the state action was necessary to develop the home industry. So that in order to develop the home industry, there was necessary that the people should discourage the imported goods, and they should develop their own natural and human resources. In contrast to the mercantilists, classical economists emphasize the importance of real factors. अब देखें जरा थोड़ा सा हम इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो तो सिर्फ बुलियनिज्म की बात करते थे, यानी कि सिक्कों की बात करते थे, सोने और चांदी के सिक्के। वो रियल फैक्टर्स तो नहीं है, वो मॉनेटरी फैक्टर है। रियल फैक्टर्स वो हैं जो वाकई आपके काम आए, जो आपकी जरूरियात को पूरा करें डायरेक्टली, वो रियल फैक्टर्स हैं। मसला सोना और चांदी आप इसको खा तो नहीं सकते ना, पी तो नहीं सकते। तो इन्होंने जो दौलत परस्ती उनकी थी, उसके बदले में क्लासिकल्स का स्कूल ऑफ थॉट के जो टेनेट्स हैं, वो हम बयान करते हैं कि वो क्या कहते थे। they emphasize the importance of real factor. वो थे मॉनेटरी फैक्टर, मनी की बात कर रहे थे, इन्होंने कहा नहीं, रियल फैक्टर्स के ऊपर एम्फेसाइज करें इन डिटरमिनिंग द वेल्थ ऑफ नेशन। आप क्योंकि एडम स्मिथ ने किताब भी लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, तो उसने कहा कि वेल्थ ऑफ नेशन को बढ़ाने के लिए, इनको डिटरमिन करने के लिए रियल फैक्टर्स के ऊपर जोर दिया। रियल फैक्टर्स हम पढ़ते हैं क्या है, and stress the optimizing tendency of the free market in the absence of state control. अब उन्होंने बुलियनिज्म में स्टेट का कंट्रोल बहुत टाइट था, लेकिन क्लासिकल्स जो है वो कहते हैं कि टेंडेंसी ऑफ फ्री मार्केट होनी चाहिए, यानी मार्केट फ्री होना चाहिए, जहां पर तलब और रसद जो है वो अपना असर दिखाकर प्राइस को डिटरमिन करें, वहां फ्री मार्केट होगी। यानी जैसे तलब बढ़ेगी प्राइस बढ़ जाएगी, जैसे रसद बढ़ेगी प्राइस कम हो जाएगी, और इसी को हम वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। स्ट्रेस ऑप्टिमाइजिंग टेंडेंसी ऑफ द फ्री मार्केट, उसे क्या फ्री मार्केट के अंदर ऑप्टिमाइजिंग यानी कि फुल यूटिलाइजेशन टेंडेंसी होना चाहिए, और वो उस वक्त होगी इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ स्टेट जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि बुलियनिज्म में हमने कहा, मर्केंटलिस्ट कहते थे कि स्टेट का कंट्रोल बड़ा टाइट होना चाहिए, उन्होंने तो पैसा बाहर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं, हर चीज को मार्केट के रहमो करम पे छोड़ दो, हुकूमत मुदाखलत ना करे। देयर शुड बी नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट और कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। only the wealth of nation can be determined by the real factors, and real factors should be left on the market forces, where the market forces will decide, जिसे हम मार्केट मैकेनिज्म भी कहते हैं। तलब और रसद का जो पलड़ा है, जिसका पलड़ा भारी होगा वही अपना असर दिखाएगा, यानी चीजों की कीमतें गवर्नमेंट नहीं डिटरमिन करेगी बल्कि तलब और रसद करेगी। सो सारा कंट्रोल जो है ना फ्री ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट है, यानी गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखेगी। नंबर 3 पे है क्लासिकल एनालिसिस वाज प्राइमरली रियल एनालिसिस। क्लासिकल एनालिसिस को हम रियल एनालिसिस कहते हैं। द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी वाज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज स्टॉक ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो रियल फैक्टर्स कौन से हैं जो ऊपर हमने बात की थी ना, रियल फैक्टर, उसे क्या प्राइमरली रियल एनालिसिस है, क्योंकि ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी वाज किसी भी मुल्क के अंदर ग्रोथ जो है वो उस वक्त रिजल्ट उसका आएगा by increasing the stocks of the factors of production. Factors of production क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों फैक्टर्स जो हैं, इनके अंदर जब ग्रोथ होगी
تو ملک کے اندر گروتھ ریئل ہوگی. اینڈ دا ایڈوانسز ان ٹیکنیک و پروڈکشن, اور آپ اس ٹیکنیک و پروڈکشن کو کے اندر آپ بہتری لے کے, یعنی ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ انوویشن ہونی چاہیے. سو وی کین سے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک کے اندر یعنی مرکینٹلزم میں ہم نے کیا پڑھا کہ وہاں پر ہیپس آف گولڈ اینڈ سلور جتنے زیادہ ہوں گے وہ اتنا طاقتور بھی ہوگا, اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اس کی معیشت بھی طاقتور ہوگی اور وہ اکانومی اتنا اسٹرانگ ہوگا. لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کے فیکٹرز آف پروڈکشن میں گروتھ نہیں ہوگی اور آپ کی ٹیکنیک آف پروڈکشن میں بہتری نہیں آئے گی, اس وقت ریئل فیکٹرز جو ہیں وہ ریئلی جو ہے وہ آپ کی اکانومی گرو نہیں کر سکتی. اکانومی گرو کیا کرے گی؟ لینڈ کے زیادہ ہونے سے, لیبر کیپٹل آرگنائزیشن کے بہتر ہونے سے, اور ٹیکنیک اور پروڈکشن کے بہتر ہونے سے. یہ ریئل فیکٹرز. منی پلیڈ اے رول اونلی ان فیسیلیٹیٹنگ ٹرانزیکشن ایز اے مینس آف ایکسچینج. تو انہوں نے کہا کہ منی, جس کو گولڈ اینڈ سلور کہتے ہیں, یہ منی تھا نا, انہوں نے کہا کہ منی کا رول جو ہے وہ صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تاکہ لین دین, ٹرانزیکشن کا مطلب لین دین کو فیسیلیٹیٹ کرنا رول ہے ایز اے مینس آف ایکسچینج, جسے میڈیم آف ایکسچینج کہتے ہیں. تو منی کا رول یہ ہے کہ اس کی وجہ سے چیزیں لی اور دی جاتی ہیں, اس لیے منی کا رول جو ہے وہ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج ہوگا, یعنی ایسا میڈیم جس کی وجہ سے آپ چیزیں خرید بھی سکیں اور بیچ بھی سکیں. تو منی ان اے سینس فیسیلیٹیٹ دا ٹرانزیکشن ٹو سیل اینڈ to purchase the goods and services. The role of money is a medium of exchange and nothing else. اب سونے اور چاندی کی جو ہے وہ انٹ صرف ہماری ضرورتیں ڈائریکٹ پوری نہیں کرتے, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ منی ہے اور یہ منی کا کام ہے مینز آف ایکسچینج کے طور پر. اور اگر آپ نے اکانومی کو ترقی کرنا ہے تو ریئل فیکٹرز آف پروڈکشن کے اوپر بات کریں اور ٹیکنیک آف پروڈکشن کی بات کریں. موسٹ کوسچنز ان اکنامکس could be answered without analyzing the role of money. ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے اکانومی کے بہت سے سوالوں کے جواب آپ منی کے رول کو اینالائز کیے بغیر ہی دے سکتے ہیں. سو منی از ناٹ امپورٹنٹ. تو نمبر 6 ہے کلاسیکل اکانومسٹ مسٹرسٹ گورنمنٹ. کلاسیکل اکانومسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر مسٹرسٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں کرتے, ان پہ ان کا یقین نہیں ہے. اینڈ اسٹریس دا ہارمنی آف انڈیویجول اینڈ نیشنل انٹرسٹ. اور انہوں نے زور دیا کہ ہارمنی ہونی چاہیے, ہم آہنگی ہونی چاہیے, انڈیویجول اینڈ نیشنل انٹرسٹ ایک جیسے ہونے چاہیے. یعنی جو ہماری قوم کا تقاضا ہو وہی انڈیویجول کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا بحثیت قوم ہمارا کیا فائدہ ہے. جو انڈیویجول کا فائدہ ہوگا, جس انڈیویجول کی سوچ میں اور قوم کی سوچ میں جو ہے وہ ایک ہارمنی ہونی چاہیے. when the market was left unfettered by government regulations, تو جب آپ انفیٹڈ کا مطلب ہے انٹیپڈ رہنے دیں آپ, کہ جب گورنمنٹ ریگولیشن جو ہے وہ گورنمنٹ ریگولیشنز جو ہے وہ اگر آپ چھوڑ دیں, آپ ان کو گورنمنٹ کے چنگل سے آزاد کر دیں, تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں when the market was left unfettered. اگر ہم مارکیٹ کو جب گورنمنٹ کے ریگولیشنز یا قوانین سے نجات دے دیں گے تو ہارمنی آ جائے گی انڈیویجول اور نیشنل انٹرسٹ میں. except those necessary to ensure that the market remained competitive. سوائے اس کے کہ جو نیسیسری ہوں اور انشور کریں کہ مارکیٹ جو ہے وہ ریمین کمپیٹیٹیو رہے. مارکیٹ جو ہے وہ کمپیٹیٹیو, مارکیٹ کی کمپیٹیٹیونیس کے لیے کچھ آپ رولز اینڈ ریگولیشن بنا سکتے ہیں. ادروائز گورنمنٹ کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اسے اگر آپ اس کے شکنجے سے نجات دے دیں گے تو پھر اکانومی جو ہے وہ بہتر چل سکے گی. سو اس لیے گورنمنٹ اگر رول اپنا پلے کرے گی تو مسٹرسٹڈ گورنمنٹ رول ہے, یعنی گورنمنٹ کی وجہ سے جو اکانومی کے اوپر حالات خراب ہو سکیں گے. both of these aspects of classical economics, کلاسیکل اکنامکس کی یہ دونوں ایسپیکٹ, دا اسٹریس آن ریئل فیکٹر جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ دونوں ایسپیکٹس ہیں کہ انہوں نے ریئل فیکٹرز کے اوپر زور دیا اینڈ بلیف ان دا ایفیکیسی آف فری مارکیٹ میکانزم. دوسری چیز, یہ پوائنٹ تو بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے جو سارے کامن نکلے ہیں وہ ہے کہ ریئل فیکٹرز کے اوپر انہوں نے اسٹریس کیا اور فری مارکیٹ میکانزم, یعنی طلب اور رسد فریلی کام کریں گی. طلب بڑھ رہی ہے
तो प्राइस जो है वो बढ़ेगी, कसरत बढ़ रही है तो प्राइस कम होगी। फ्री मार्केट मैकेनिज्म है जहां पर आप गुड्स एंड सर्विसेज को फ्री छोड़ देंगे और तलब और रसद के रहमो करम पे छोड़ देंगे। Developed in the course of controversies over long run questions, कि इन्होंने जो है वो लॉन्ग रन क्वेश्चन के ऊपर कंट्रोवर्सी जो है वो डेवलप की कंसर्निंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिटर्मिनेंट के हवाले से इसने कंट्रोवर्सी जो है वो लॉन्ग रन क्वेश्चन के ऊपर कंट्रोवर्सी जो है वो प्रोड्यूस कर दी कि रियल फैक्टर्स और फ्री मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके ऊपर लोगों की इख्तलाफ राय पैदा होना शुरू हो गई। These classical positions on long run issues were, however, important in shaping classical economist view on short run questions. These classical positions on long run issues were, however, कि ये जो लॉन्ग पीरियड की बात करते थे क्लासिकल्स वर हाउएवर इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट साबित हुए इन शेपिंग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट व्यूज ऑन शॉर्ट रन क्वेश्चंस, के लॉन्ग रन से फिर वो शॉर्ट रन क्वेश्चंस को भी शेप अप करने के लिए ये लॉन्ग रन के व्यूज भी क्लासिकल के शॉर्ट रन क्वेश्चन को शेप देने के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित हुए। The attack on Booleanism led classical economists to stress that जब क्लासिकल्स ने उनके ऊपर अटैक किया तो बुलियनिज्म के ऊपर, तो उन्होंने क्लासिकल्स टू स्ट्रेस दैट, क्लासिकल ने फिर जोर दिया कि मनी हैड नो इंट्रिंसिक वैल्यू। ये हमने पीछे कह दिया कि मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो मैंने पहले भी कहा कि मनी को खाया नहीं जा सकता। तो मनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, यानी कि उसके अपने जाते खुद कोई वैल्यू, इंट्रिंसिक का मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं। Money is just a coin of gold. You cannot eat, you cannot dress up with money. So money was important only for the sake of the goods it could purchase. Money की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, मनी की अपनी कोई हैसियत नहीं है। इसकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि इसकी वजह से गुड्स परचेज की जाती है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस ऑन द रोल ऑफ मनी एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज, ये पहले भी मैं बयान कर चुकी हूँ कि ये कहते थे कि मनी की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो येलो में मैंने लिखा है इसको टर्मिनोलॉजी को याद रखें कि इसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, और इसका अगर नहीं है तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं है। नहीं, एक चीज तो है, वो है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसकी वजह से चीजें दी और ली जाती हैं, खरीदी और बेची जाती हैं। Another role money had played in the mercantilist view was as per to economic activity. Another role money had played in mercantilist view. Mercantilist का व्यू ये था कि मनी जो स्पर टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तेज करता है मनी। In the short run, mercantilists argued an increase in quantity of money would lead to an increase in demand for commodities. Mercantilists ये कहते थे कि शॉर्ट पीरियड में वो इस चीज की दलील देते थे कि जब मनी की क्वांटिटी में इजाफा हो जाता तो वुड लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर कमोडिटीज। शॉर्ट पीरियड में मनी की डिमांड में इजाफा, मनी की क्वांटिटी में इजाफा होने से लोग जो है वो कमोडिटीज की डिमांड ज्यादा करते। जाहिर है मेरे पास जब पैसा ज्यादा आ जाएगा तो मैं चीजें ही डिमांड करूंगी एंड वुड स्टिमुलेट प्रोडक्शन। तो उनका कहना था मर्केंटलिस्ट का कि शॉर्ट पीरियड में जब मनी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो लोग बाजारों में निकलेंगे, चीजें खरीदेंगे और डिमांड फॉर गुड्स बढ़ जाएगी, कमोडिटीज एंड सर्विसेज एंड वुड स्टिमुलेट, जिससे कि डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है कि चीज़ों की अंदर प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाएगा। प्रोडक्शन जो है वो बड़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। और जब प्रोडक्शन होती है, वेयर देयर इज अ प्रोडक्शन देयर इज एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के चोली दामन के साथ है। प्रोडक्शन कौन करेगा? कोई खलाई मखलूक तो नहीं करेगी ना, यहाँ के लोग ही करेंगे। सो दैट इज हाउ कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ती है। तो दो चीजें बढ़ गई ना। तो क्वांटिटी ऑफ मनी शॉर्ट पीरियड में आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को बढ़ाएगी, विच डिमांड विल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ेगी और फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी शॉर्ट पीरियड।
But for classical economists, to ascribe this role to money in determining real variables, even in short run, was dangerous in light of their de-emphasis of the importance of money. कहता है कि classical economists जो ascribe this role to money, वो कहते हैं कि मनी का अगर ये रोल है इन डिटर्मिनिंग रियल वेरिएबल्स कि वो मनी जो है वो जैसे हमने कहा स्टिमुलेट प्रोडक्शन, तो मनी अगर रियल वेरिएबल्स को स्टिमुलेट करेगी इवन इन द शॉर्ट रन, बेशक वो जो कहते हैं कि शॉर्ट पीरियड में करेगी, लॉन्ग में ना करे, was dangerous in light of their de-emphasis of the importance of money. वो कहता है ये डेंजरस है इन लाइट ऑफ देयर डी-एम्फेसिस, जबकि वो मनी को एम्फेसाइज करते हैं ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ये खुद ज़ाते खुद जो है वो डेंजरस है क्योंकि डी एम्फेसाइज करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, क्योंकि वो कहते हैं शॉर्ट पीरियड में इसको अफेक्ट करें। सो the classical take on mercantilist view of the need for state action to regulate the capital system also had implications for short-term macroeconomic analysis। और फिर वो तनकीद करते करते ये भी कहते हैं कि मर्केंटलिस्ट ये कहते थे क्लासिकल्स ने टैग किया है कि स्टेट का जो रेगुलेशन का रोल है जिससे वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को पाबंदियां लगा के बहुत रेगुलराइज करते हैं, बुलियनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं होने देते, इंपोर्ट पे पाबंदियां लगाते हैं। उसने कहा कि शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं हैड इम्प्लीकेशन, इसकी भी कुछ शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं, इम्प्लीकेशन फॉर शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में इसकी इम्प्लीकेशंस के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया है। One role for state action in the mercantilist view was to ensure that market existed for all goods produced. One role for state action in the mercantilist view का role एक और जो है वो स्टेट का जो एक्शन है mercantilist view में was to ensure that market existed for all goods produced, कि तमाम गुड्स जो उन्होंने प्रोड्यूस किए उनकी मार्केट्स वजूद में आ जाए। ये भी एक रोल इसके ऊपर जो है वो mercantilist का व्यू था। Consumption both domestic and foreign must be encouraged, कि कंजम्पशन आपकी डोमेस्टिक भी इनकरेज करें और फॉरेन भी करें, यानी आप अपने मुल्क के अंदर भी कंजम्पशन बढ़ाएं अपनी चीज़ों की और आपकी चीज़ें बाहर भी कंज्यूम हो टू द एक्सटेंट दैट प्रोडक्शन एडवांस। जब प्रोडक्शन एडवांस हो तो मुल्क की कंजम्पशन भी बढ़े और फॉरेन कंजम्पशन, यानी आप मुल्क के अंदर भी चीज़ें इस्तेमाल करें खरीद कर और बाहर वाले लोग भी आपकी चीज़ें ही इस्तेमाल करें। द क्लासिकल रिस्पॉन्स इज स्टेटेड बाय जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्लासिकल का रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से दिया। In opposition to these palpable absurdities, tangible irrationalities, यानी मैंने इसका जो मीनिंग लिखा है कि in opposition to these palpable absurdities, ये उनके जॉन स्टुअर्ट मिल के अल्फाज हैं और उसने कहा palpable absurdity का मतलब है tangible irrationality, यानी जो गैर फितरी किस्म की जो irrationality tangible, जो गैर फितरी जो बातें हैं, it was triumphantly established by political economists, कि political economist ने बड़ा फातिहाना अंदाज में ये बात बहुत जोर दे के कही है that consumption never needs encouragement, कंजम्पशन को कभी भी एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं होती। ये किसने कहा है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। एज इन अदर एरियाज, ये जो आप देखें जॉन स्टुअर्ट मिल तो जाहिर है कि क्लासिकल न्यू क्लासिकल दौर का था। एज इन अदर एरियाज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट felt that the free market mechanism would work to provide markets for any goods that were produced। उसने कहा कंजम्पशन को हौसला अफजाई की जरूरत नहीं है, फ्री मार्केट मैकेनिज्म है, ये खुद ब खुद काम करेगा टू प्रोवाइड मार्केट फॉर एनी गुड्स दैट वर प्रोड्यूस। जो चीजें भी प्रोड्यूस हो गई हैं उनकी मार्केट वो खुद प्रोवाइड करेगा। कौन?
free market mechanism that is not controlled by the government. The legislator therefore need not give himself any concern about consumption. तो legislator जो government कवानीन बनाती है उसको consumption के ऊपर कोई पैरा देने की जरूरत नहीं है। तो पता चला कि क्लासिकल्स का कहना ये है कि ये सारी गैर फितरी बातें हैं कि कंजम्पशन जो है उसको इनकरेजमेंट की जरूरत है, फ्री मार्केट के रहमो करम पे छोड़ दें तो खुद ही जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं वो खुद अपना यहाँ मार्केट तलाश कर लेंगे। नंबर 2 पे है द क्लासिकल डॉक्ट्रिन वाज दैट इन द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट will generate sufficient demand. The classical doctrine was that कि इनका असूल ये था in the aggregate के मजमूई तौर पर प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बसीयत कौम जो आपकी आउटपुट की क्वांटिटी है विल जनरेट सफिशिएंट डिमांड, वो खुद ब खुद अपनी जो है वो सफिशिएंट डिमांड यानी काफ़ी हद तक डिमांड अपनी जो है वो खुद पैदा कर देगी फॉर दैट आउटपुट, यानी उस आउटपुट के अंदर की जो जितनी भी आउटपुट है वो अपनी डिमांड खुद पैदा कर देगी। देयर कुड नेवर बी अ वांट ऑफ बायर्स फॉर ऑल कमोडिटीज, कि तमाम कमोडिटीज के लिए खरीदारों की कभी वांट यानी कमी नहीं होगी। तो इसका एक बड़ा माकूला मशहूर है जिसे अगर इस नंबर 2 पॉइंट्स को अगर मैं लिखूं कि ये शॉर्ट करके लिखूं कि क्लासिकल्स का ये कहना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो जहां सप्लाई होगी तो कोई चीज बगैर बिके नहीं पड़ी रहेगी। जब सप्लाई सारी डिमांड में बदल जाएगी तो ओवर प्रोडक्शन भी नहीं होगी, ओवर प्रोडक्शन नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा इकोनॉमी में रहेगी। यानी क्लासिक कर्ज अपने आप को साबित करने की कोशिश कर। Number 3 पे consequently classical economy gave little explicit attention to factors that determine the overall demand for commodities. अब वो सप्लाई की बात करते हैं, क्लासिकल्स किसकी बात करते हैं, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई इज इम्पोर्टेंट not demand is important. So classical economist ने little attention दी है to factors जो कि goods and services की जो डिमांड है उसको जो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं उसकी उन्होंने ना होने के बराबर बातें की हैं, यानी उस पर तवज्जो नहीं दी। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, या मैं थोड़ा सा आपको रोशन कर दूं एक चीज को, यहाँ जो कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड because they focus on the supply side not the demand side। सप्लाई ही इम्पोर्टेंट है, डिमांड खुद ब खुद हो जाएगी, तो सप्लाई आपको करनी पड़ेगी। इसलिए वो इसको क्लासिकल्स को इस असूल की वजह से हम सप्लाई साइडर्स भी कहते हैं। यू कैन राइट हियर ड्यू टू देयर दिस प्रिंसिपल वी कॉल द क्लासिकल एज सप्लाई साइडर। और इन्होंने डिमांड की बात नहीं की, तो डिमांड की बात बाद में आकर केन्स ने की, एग्रीगेट डिमांड की बात, इसलिए केन्स और केन्सियंस को हम डिमांड साइडर्स कहते हैं। तो यहाँ ये दो बातें जो है वो ज़हन में रखें। Thus, two features of the classical analysis arose as a part of the attack on the mercantilism. Mercantilism के ऊपर अटैक करने के दो पॉइंट्स ही बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट stress the role of real as opposed to monetary factors in determining output and employment। के क्लासिकल में ने रियल फैक्टर्स को के ऊपर जोर दिया है, जो रियल फैक्टर जो कि आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करते हैं उनके उन इनके डिटर्मिनेंट्स के लिए जो है वो उन्होंने रियल फैक्टर्स के ऊपर जोर दिया है, मॉनेटरी फैक्टर्स के ऊपर नहीं। यानी बुलियनिज्म की बात नहीं की है बल्कि रियल फैक्टर्स यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी की बात की है। मनी हैड अ रोल इन द इकोनॉमी एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज। ये हम शॉर्ट करके बता रहे हैं कि मनी जो है उसका रोल क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। Number 2, classical economists stress the self-adjusting tendencies of the economy कि इकोनॉमी के अंदर खुद ब खुद एडजस्ट होने की टेंडेंसी या रुझान पाया जाता है। यानी वो किससे होता है, सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तलब और रसद चीज़ों की जब फ्री मार्केट मैकेनिज्म को हम सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसीज ऑफ द इकोनॉमी भी कहते हैं। तो जहाँ तलब ज़्यादा होगी या रसद ज़्यादा होगी वो खुद ब खुद आपका डायरेक्शन मुतय्यन करेगी कि आपने कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कितनी प्रोड्यूस करनी है और कब प्रोड्यूस करनी है।
So government policies to ensure an adequate demand for output were considered. Government policies to ensure an adequate demand for output were considered by classical economists to be unnecessary and generally harmful. के क्लासिकल्स के मुताबिक गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस सिलसिले में जो इंश्योर कर सकें कि मुल्क में आउटपुट की एडिक्वेट डिमांड है या नहीं है, क्लासिकल ने उसको अननेसेसरी समझा है और उसे कहा कि ये तो हार्मफुल है कि गवर्नमेंट इसमें असरअंदाज करे कि ये डिमांड एडिक्वेट डिमांड फॉर आउटपुट हो सकती है नहीं। तो एडिक्वेट डिमांड फॉर आउटपुट को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो डिमांड को कौन सी चीज डिसाइड करेगी क्लासिकल के मुताबिक, उसकी तलब और रसद करेगी। We turn now to the model constructed by classical economists to support these options. इन ऑप्शन को करने के लिए हमने अब क्लासिकल सिस्टम को पढ़ते हैं कि क्लासिकल सिस्टम क्या है। आज जो हमने अभी तक पढ़ा है वो आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमने जो है वो फर्दर इसको एक्सप्लेन करना है, वो अगले लेक्चर के अंदर इसको एक्सप्लेन। So now we are ending this